Myers-Briggs Type Indicator Personality Assessment Test. It classifies your personality into 16 different types. And for the same purpose, I had given you a questionnaire, the online questionnaire. Many of you had already filled up and you had shared with me the screenshots. So I would like to start with Harish. Harish, your personality trait is INTJ. Yes, sir. Your personality trait is INTJ, right? I stands for introvert, N stands for intuitive, T stands for feeler, and J stands for judger. So if you look at it on in this particular wheel, INTJ people are generally the mastermind behind any activity. If they go in the right hand, good things happen. Otherwise, vice versa, things are going to happen. So Oh, मास्टरमाइंड का मतलब क्या होता है? हाँ आप सर। अंदर ही अंदर चीजों को बुनते हैं, जाल बुनते हैं और वो जाल को फेंक हाँ, देते हैं। और शिकारी शिकारी आप हैं, कोई शिकार आपके उसमें जाल में फंस जाता है और अगर बाई चांस पकड़े जाते हैं तो उसमें नाम आपका नहीं होता। आप मास्टरमाइंड, आप पीछे से आप एक लोगों को मोटिवेट करने में बिलीव करते हैं, आप एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। इंट्यूटिवनेस होने की वजह से आपके दिमाग में एक विजन क्रिएट होता है कि ये इस तरीके से होगा तो कैसा होगा। आप जो चीजें हो रही हैं उसके बेसिस पे सेंसिटिव नहीं है ज्यादा। यू आर वेरी मच इंट्यूटिव, विच मीन्स यू थिंक as per your particular things which are there going on inside your mind. At the same time you also consider some part of your intuitiveness कि आप बोलते हैं कि आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि आज ऑफिस में ऐसा होने वाला है, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। सो मास्टरमाइंड लोग जो होते हैं बेसिकली वो काफी स्ट्रांग होते हैं, बट एट द सेम टाइम आपका एक सबसे हाँ सर। मेजर जो पॉइंट है वो ये है जजर और परसीवर। हर किसी की पर्सनालिटी में ये दो एस्पेक्ट होते हैं, वो जज भी करता है और वो चीजों को समझता भी है। बट आपका जो रिजल्ट आया है पर्सनालिटी का, वो इंक्लाइनेशन जजर की तरफ ज्यादा दिखा रहा है। ऐसे लोग रिलेशनशिप में जल्दी फेल हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि वो, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो वाइफ अगर कहीं आपसे नहीं निभा पाई तो आप चीजों को जज करने लग जाएंगे। ये ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितना ज्यादा आपके अंदर जे का फैक्टर ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपकी पर्सनालिटी जे के इन्फ्लुएंस में होगी। एट द सेम टाइम आप लोगों को ज्यादा जज करेंगे। अगर ये जे का कंपोनेंट कम है तो आप एक हद तक मैनेज कर सकते हैं, बट आप इसको रिड्यूस करने के लिए आपको परसीवर भी होना चाहिए। आपको चीजों को समझना चाहिए। एक चीज में एकदम से देख के आप रिएक्ट मत करिए कभी भी, वो आपके अगेंस्ट में जा सकता है। Since you have more ओके tendency सर। to judge the people based on the personality trait assessment, which I can see, I would suggest you to try to just control your anger, control your temperament. Don't take the immediate decisions. Don't take any opinion of any person based on one particular situation. किसी इंसान को समझने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए, या इमीडिएट कोई भी फैसला लेते हैं लाइफ में तो उस इमीडिएट फैसले को थोड़ा टाइम के लिए रोकिए। अदरवाइज यू आर अ वेरी गुड पर्सनालिटी INTJ, और INTJ वाले लोग बहुत आगे जाते हैं। शैल आई गो हेड ओके सर। नाउ? आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट योगेश मुदलियार। आर यू देयर योगेश विद मी इन द सेशन राइट नाउ? योगेश मुदलियार, okay. I shall be now talking on the personality of Shubham Pillai, my mentee. Are you there, Shubham? Yes, sir. Yes, I am योगेश there. मुद्देदार से Okay, Hello. Yogesh, I'll be taking yours next. Let me take Shubham's personality assessment. ओके Shubham, Yes, sir. your personality trait is ESTJ. You can mute Yes. yourself. I'll talk to you meanwhile. Okay. Okay, sir. Okay. Okay, हाँ. तो Shubham, you have got a very good personality. ESTJ. Sorry, ESTJ, yes. And as far as I know, most of the Indians have got this kind of personality, ESTJ. It is a very commonly find personality amongst the Indian. E stands for the extrovert. Now your personality is quite extrovert, as I can see during the time of our this induction program, as well as during our international conference. You took lot of initiatives as a student. These all things are appreciated, and these are possible only when if you have tendency to
become outgoing personality, tendency to meet people, tendency to interact with the people. So these type of people have got better interpersonal skills. They can really understand others, and they can really get mingled with others very easily, just like as you can dissolve the water in the milk very easily, and no one can find out where is the water and where is the milk. So same is the case with the extrovert people. They get mingled with even children, even any age group people very easily. When you look at the personality aspects, so you have got a very good personality to become a supervisor. Such kind of persons can become a supervisor in any organization, because you are extrovert, you are sensitive also. Whatever is happening, you are sensitive towards it. If there is a pressure situation, you will be sensitive towards it. You will not waste your time, and you will behave in that situation. As I have observed your personality, as I have observed you personally, by remaining at your very close distance at the time when you were giving the introduction for the guest speakers in the international conference, you were dressed very appropriately and very professionally. So this tells that you get डिजॉल्व एंड इन्वॉल्व इन द पर्टिकुलर सिचुएशन. आप बोलते हो कि मैं इस सिचुएशन में अगर कुछ मुझे डाल देगा तो मैं उसके हिसाब से सोचने लग जाता हूं. तो ESTJ पर्सनालिटी इज वेरी गुड. थिंकर, आपके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी है. आप चीजों को समझ के उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं. देन थिंकिंग आपका सबसे बड़ा एक हथियार भी है. आप चीजों को समझते हैं, सोचते हैं और उसके बाद काम करते हैं. ऐसे लोग जो समझ के काम करते हैं, मेरे हिसाब से गलतियां होती हैं तो भी वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं. लास्ट वन इज जे. ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब आप जरूरत से ज्यादा लोगों को जज करने लग जाते हैं. व्हेन यू बिकम मोर जजमेंटल, मींस लोगों को देखते ही इमीडिएट उनके बारे में परसेप्शन बना लेना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना है, इससे बात करना, इससे बात नहीं करना है, ये बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत बुरा हो गया. डोंट मेक सच काइंड ऑफ impression just by looking at the person for the very first time, or in the very first glimpse, in the very first interaction. Don't make any perception or opinion about any situation, any person, any object, or anything. If you become perceiver, probably you will be a better inspector, a better provider, a better protector, a better promoter. आपको परसीव करके अगर चलते हैं, सो आप क्राफ्ट भी कर सकते हैं नई चीजों को. जब तक लोगों को जज करेंगे तो आप केवल जजमेंट पे फोकस कर सकते हैं, आपकी एनर्जी केवल जजमेंट पे जाएगी. बट द मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द परसीवर, मतलब आप चीजों को समझ के उसके हिसाब से सिचुएशन पे करेंगे, देन यू कैन बिकम अ चैंपियन, यू कैन बिकम अ क्राफ्टर, एंड यू विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स. सो ये था शुभम के बारे में. नाउ कमिंग टू चेतना फुलझेले. चेतना, आर यू देयर? Yes, sir. Okay, Chetna, you have INTJ personality. INTJ. Harish is also having the same personality. So I stands for introvertness. Chetna, in order to become a successful manager, in order to become a good orator, in order to become a good leader, you need to reduce your introvertness and increase your extrovertness. लोगों से घुलना मिलना चालू करिए, बात करना चालू करिए. आप मन की बात को अपने मन तक रखती हैं क्या? ऐसा होता है क्या चेतना कि यू टेक टाइम इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड इंटरेक्टिंग एंड मिंगलिंग विद द पीपल? इज इट सो? Yes, sir. Okay, so this is not a good practice in organizations. If you are not visible, there would not be any demand for you. You have to always remain in the demand. For that, you need to create the visibility. You can create a visibility only by virtue of being extrovert, being polite, being humble, being outwardly spoken, and being supportive. These things are possible only when if you are extrovert. Okay, so the next thing is N. N stands for intuitiveness. आप अपनी इंट्यूशन पे बहुत जीते हैं. आप आपके अंदर आत्मा जो आपकी बोलती है, आप उसके हिसाब से चीजों को बहुत एक्ट करते हैं. अगर आपको आपका आत्मा आपकी बोल रही है, आपका मन बोल रहा है कि ये अच्छा है, तो आप उस तरफ चल देती हैं. आप फिर दूसरी चीजों को नहीं सोचती. आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की भी जरूरत है. आप चीजों को सेंस करके अगर उसके हिसाब से चलेंगी तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा. आपके जैसे लोग अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, एक अच्छे मास्टरमाइंड होते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट में जा सकते हैं. बट अगर आप ज्यादातर इंट्यूशन पे ही जिएंगे तो आप सेंसिटिव कम हो जाएंगे लोगों के लिए. जब आप सेंसिटिव कम हो जाएंगे तो आप लोगों पे शक करने लग जाएंगे, और जब शक करने लग जाएंगे तो जजर का ये जो बेसिकली जो लास्ट है
कंपोनेंट दैट इज जे, ये उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। आप लोगों को जजमेंट करने लग जाएंगे कि ये जो है ये मेरे पास आया रो रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो इसके घड़ियाली आंसू थे, दीज आर द क्रोकोडाइल टीयर्स, because you have less component of sensitiveness and more component of intuition, so you will think from the intuition perspective only, right? And talking about t, t means आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, फील भी करिए सोचिए भी। अगर आप केवल सोचते ही रहेंगी तो गाड़ी हाथ से निकल जाएगी। मास्टरमाइंड है, मेरे को पता है, आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, घर में भी कोई फंक्शन हो कहीं बाहर का, बट आपको ये बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप फील भी करिए, थिंक भी करिए। आप ज्यादा सोचती हैं, इस वजह से आपका पर्सनालिटी ट्रेट इस तरीके से निकल के आ रहा है। और ज्यादा सोचने वाले लोगों को आज की तारीख में हाइपरटेंशन भी हो सकता है। अगर कुछ गलत हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, उसको सुधारने के लिए कोशिश करिए, बात करिए लोगों से, घुलिए मिलिए जाकर। अगर आप उसी सोच में पड़ जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप सोचती हैं चीजों को? आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू। Yes, sir. So make a habit of not thinking so much on your things whichever has happened, whether it is good or bad. ज्यादा चीजों में मत इन्वॉल्व हो जाओ, सोचो आगे बढ़ जाओ, फायर एंड फॉरगेट का नेचर रखो। किसी ने गलत किया तो फायर एंड फॉरगेट। नाउ कमिंग बैक टू योगेश मुदलियार, आर यू देयर हियरिंग मी राइट नाउ? योगेश, your personality trait tells that you are ENTJ. E stands for extrovert, N stands for intuitive, T stand for thinker, and J stand for judger. Now, if you look at here in this particular wheel, ENTJ personality is again a very strong and powerful personality. You can become a general or a leader in any organization. You have all the capabilities. Just by converting your introvertness into extrovertness from mastermind, you have become a general. It means you have the capability to lead, you have the capability to get the followers, and people will definitely follow you because you are extrovert, you are humble, you are polite, you are extrovert, you are outward, and all these qualities makes you a person who is right fit for the organization for the top position. Rest, thinker, it's a good ability. For all the leaders you have to constantly think. And as I said, Yogesh J, you need to first of all understand that even if you are at the top position, even if you are at middle level position of your organization, don't become judgmental. Try to balance the things. Whenever any untoward situation happens, in that scenario, try to perceive that situation, try to assume yourself in that particular scenario, and then take a decision. Otherwise, these things might affect your chances of reaching the top position in the organization. Yogesh, if you are hearing me, tell me affirmative. Yes, sir. Okay, Roger. Let's go ahead. Now, I would like to talk about Tejas. Tejas, are you hearing me right now? Yes. Okay, Tejas, you have a personality called as INTJ. Again, as I said, you have a very good ability to become a mastermind behind any project. But remember, my dear friend, masterminds are very, very sound people in terms of their understanding and thinking. But at the same time, they start judging others. Even they start judging their colleagues कि यार मैंने सब कुछ किया है बट मेरा क्रेडिट तो वो सामने वाला ले गया। ऐसा होता है कि आपके साथ तेजस कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि आपने कोई काम किया और उसका क्रेडिट कोई और उड़ा ले गया आपके सामने से? No, sir. कभी आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनी और उसको कोई और लेके चला गया? जस्ट No, जोक sir. से बात। ओके, सो इंट्रोवर्टनेस बेसिकली क्या होता है, ये आगे चल के कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लाइफ में। यू नीड टू कंट्रोल द इंट्रोवर्टनेस। एज आई वुड लाइक टू से दैट आपको लोगों से घुलना मिलना चाहिए। यू हैव टू लर्न हाउ टू बी सोशल। लोगों से घुलिए मिलिए, आपके लिमिटेड फ्रेंड सर्किल में बात मत करिए। आप एक ओपन प्लेटफॉर्म देखिए, जहां कहीं पर भी जाते हैं, ट्राई टू फील दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग, गेट इन्वॉल्व इनटू दैट पीपल एंड द सिचुएशन। आप इंजॉय करना सीखिए। जितना आप लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, आप ये मत सोचिए कि ये मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, ये तो ड्राइवर है, ये तो हाउसकीपिंग स्टाफ है, इससे बात करके क्या होगा?
don't judge the people on the basis of their roles and responsibility. That is the biggest drawback of this personality. Otherwise, you guys are really great because you are the mastermind behind any project. But at the same time, when you are introvert, your visibility is very less in the organization. So you have to learn how to be extrovert. This is the interpretation which is being drawn on the basis of the answers given by you in the questionnaire, and it is said that 70 to 80% of the cases the interpretations whatever I am giving, it is matching with the actual reality. So may I know, Tejas, what is the reality? Whatever I have talked about, are you introvert? सर मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ सर, मतलब ऐसे कि मैं ज्यादातर है ना बात करना चाहता हूँ। करना चाहते हैं, करते हैं आप बात, लोगों से बात करते हैं? यस सर। ओके, सो आपने जो आंसर दिए हो सकता है कि आपने उसको प्रॉपरली रीड नहीं किया, क्योंकि ये जो आंसर्स होते हैं ये आपकी पर्सनालिटी के बेसिस पे ही निकलते हैं। इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करके देखिएगा, एंड बाय नॉट कीपिंग इन माइंड द प्रीवियस आंसर्स, ठीक है? वी विल सी। ओके, और आपको मैं बता देना चाहता हूं, जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में बोला कि पर्सनालिटी इज अफेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉट ऑफ फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। अब एक राजा के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको शुरुआत से बोला जाता है, राजकुमार आपको ये शोभा नहीं देता, आपको तो ऐसा ही करना चाहिए। आपने पढ़ा होगा रामायण की स्टोरी में, राम लक्ष्मण जब पैदा हुए तो उसके बाद उनको भेज दिया गया वन में, उसके बाद वो वहां से पूरी शिक्षा करके वापस आए। तो ये सारी चीजें, उनके जो कर्म होते हैं, उनके जो जो पर्टिकुलर वर्क होते हैं, वो सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं पहले से ही, और उसी हिसाब से उनकी पर्सनालिटी शेप होती चली जाती है, राइट? सो नाउ कमिंग टू संकेत। संकेत, आर यू देयर हियरिंग मी? संकेत, संकेत, okay, let's talk about Devendra. Deva, are you there? Devendra, are you there? Akshada, are you there? Akshada. Okay, so this is all from my side regarding personality assessment. Yes, sir. I'm here. Akshada, you are slightly late. Okay, you will Sorry, understand sir. about your personality based on the interpretation and the inference which I am going to give you right now. This is very important for you all to understand your personality, and then based on that, choose your career wisely. Even the specialization can be chosen based on the personality assessment. It would be really great if you take this session very seriously and very close to your heart. As I was talking about the extroverts are basically talkative people. They think out loud. Introvertness, as I can see in your case, Akshada, Devendra, then Harish Bhai and Chetna, you need to reduce your introvertness and you need to become more talkative, more loud, more outgoing, enjoy working in the groups, become more friendly and hospitable person. एंड देन एक्सट्रोवर्टनेस की एक पहचान होती है कि ये लोग चुप नहीं बैठते, ये लोग डोमिनेट करते हैं, कोई भी कन्वर्सेशन होता है इनके पास में तर्क देने की जो ताकत होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि ये चीजों को समझते हैं और इमीडिएट ऑब्जर्व करके रिएक्ट करते हैं, एंड देन दे डोंट लिसन टू अदर्स इजली, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब ये सुनने बैठते हैं ना किसी को, तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इनको नींद आने लग जाती है या सोने लग जाते हैं या कुछ और, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। And extroverts focus attention and energy outward. If you look at the top personalities who have this particular trait, you will find Barack Obama, Sandra Bullock, Oprah Winfrey and then Robin Williams. इनके बारे में जरा नेट पे निकालिएगा, इनका भी पर्सनालिटी असेसमेंट हो चुका है बेस्ड ऑन द सेम टेस्ट एंड दे आर फाउंड टू बी एक्सट्रोवर्ट्स। नाउ कमिंग टू इंट्रोवर्टनेस। हाँ जी सर, मेरा एक रह गया ना सर। I was calling your name. What's your good name? सागर सर। सागर, आपका what's your personality? ISTJ सर। ISTJ। देखिए, ISTJ वाले लोग जो होते हैं, आप इंट्रोवर्टनेस है आपके अंदर, आप क्वाइट रहते हैं, अपनी बातों को अपनी दुनिया में रखते हैं, हाई कंसंट्रेशन होता है आपके पास, एंड देन यू प्रीफर टू वर्क अलोन। S स्टैंड्स फॉर सेंसिटिव, आप चीजों को सेंस करके लेते हैं, आप सेंसिटिव बहुत होते हैं, मतलब फैमिली से अटैचमेंट है, आप कुछ बोलेंगे नहीं बट मन ही मन उस चीज को रखेंगे, राइट? उसकी वजह से होम सिकनेस आ जाती है।
टी स्टैंड्स फॉर थिंकर, आप बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, आपके जैसे लोग आगे बहुत जाते हैं। एंड देन जे, ये जो फैक्टर होता है ना, जब आप ज्यादा सोचने लग जाते हैं तो आप सामने वाली दुनिया को, सामने के लोगों को जज करने लग जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं कमी महसूस करते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से दो चीजों को कन्वर्ट करना है, इंट्रोवर्टनेस को एक्सट्रोवर्टनेस में एंड जजर हाँ। को परसीवर में। आपकी पर्सनालिटी के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल ये होगा कि आप चीजों में इन्वॉल्व होना सीखिए। स्टार्टिंग में आपको हेजिटेशन लगेगा, बट लोगों से मिलिए, बात करिए, उनसे जितना ज्यादा फ्री होके, फ्री माइंड होके बात करेंगे, उतना ज्यादा लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे। याद रखिए, आप मार्केटिंग की दुनिया में जी रहे हैं, सेलिंग की दुनिया में नहीं। यहां पर यू डोंट हैव टू बिकम इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, बट यू हैव टू बिकम इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब ये होता है कि लोग आप में इंटरेस्ट लें, और लोग आप में तभी इंटरेस्ट लेंगे जब आप उनमें इंटरेस्ट लेना चालू करोगे। जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट लेना भी ठीक नहीं है, आपको उनमें ऐसा इंटरेस्ट लेना है कि आपको उनकी फीलिंग्स और बाकी उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ सिंपैथी, एम्पैथी, टाइम टू टाइम जो सपोर्ट, कोऑपरेशन एक्सपेक्टेड है वो आपको दिखाना है। बस चीजें हो और जाएंगी सर, अपने आप। जी सर मैं अभी बैंक में 5 साल से मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। जी। तो ज्यादा लोगों को मिलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी बैंक में जॉब अच्छा है तो ये मैं कर रहा हूँ। तो ये करियर ओके, मतलब कौन से पार्ट में करना चाहिए, ये फाइनेंस में? जी। आपके लिए पर्सनालिटी के लिए मैंने एक स्लाइड रखी है लास्ट में, बने रहिए मेरे साथ में। एंड यस देन सर। आई विल लाइक टू टेल एवरीवन बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटी व्हाट वुड बी द राइट करियर चॉइस। यस सर। ठीक ओके। है, आप ठीक मेरे है सर। साथ बने रहिए। ओके, सो इंट्रोवर्ट्स आर क्वाइट, they keep the things private, they have a high concentration, they prefer to work alone, अकेले में काम करना पसंद करते हैं, एंड हेट बीइंग पुट आउट ऑन द स्पॉट। अगर उनको कोई लाइमलाइट में डालने की कोशिश करता है तो वो उसमें उनको पसंद नहीं आता, दे आर नॉट कंफर्टेबल। एंड थिंक बिफोर दे स्पीक, वो कुछ भी चीज बोलने से पहले 4 बार सोचेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एंड देन प्रोसेस द इमोशंस इंटरनली। कोई अगर इनको, जैसे बचपन में मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे, तो उसमें फ्रेंड्स में कुछ ऐसे थे जो लड़ाई करते थे अगर, तो वो खुल के लड़ाई करते थे। कुछ ऐसे होते थे जो मार खा जाते थे और मन ही मन अपने इमोशंस को प्रोसेस करते थे, कुड़ते थे, दांत पीसते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। तो वो इंट्रोवर्टनेस थी, उसकी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। बट कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे लोग भी थे, एक अच्छे फ्रेंड भी थे, क्योंकि वो चीजों को समझते थे और बोलने से पहले कि उसको सामने वाले को हर्ट ना हो जाए। अब आप देखिए जूलिया रॉबर्ट्स, वर्ल्ड की टॉप की पर्सनालिटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मेरिल स्ट्रीप एंड माइकल जैक्सन, ये वर्ल्ड के टॉप के लोग हैं जिनके पास ये पर्सनालिटी है। तो यू आर ब्लेस्ड ऑल्सो समवेयर। आपको राइट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। टोटली इंट्रोवर्टनेस में भी नहीं जाना है एंड टोटली एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होना है। ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे तो लोग अवॉइड करने लग जाते हैं। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एंड देन यू हैव टू लर्न अकॉर्डिंग टू द जॉब एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द जॉब रोल, how much degree and how much proportion of extrovertness and introvertness is desirable, and what would be the magnitude of extrovertness and introvertness for any given job role in the organization, that you have to decide based on your work experience. Now what is your most natural energy orientation? अब आप यहां पर देखेंगे, in any given situation a person will tend to direct their energy inward और outward. एनर्जी क्या है? बोल के एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स दिखा देना, गुस्सा दिखा देना, प्यार दिखा देना, ये सब एनर्जी का फॉर्म है, राइट? अब आप देखेंगे अगर एक्सट्रोवर्ट के केस में, इन केस ऑफ एक्सट्रोवर्ट, दे स्पीक अप, व्हाट दे से, स्पीक अप इंट्रोवर्ट, स्पीक अप इंट्रोवर्ट एंड सेज द एक्सट्रोवर्ट। मतलब वो हमेशा लोगों को बोलते हैं, अरे यार बोलो, तुम बोलोगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा। और एक्सट्रोवर्ट होने के नाते वो हमेशा बोलना चाहते हैं, शाउट करना चाहते हैं, दे वांट टू शाउट, दे वांट टू बी लाउडर enough so that everyone can hear them and they should be heard in the organization and in the real world. Now अभी यहाँ पे जो इंट्रोवर्ट होता है वो क्या कहता है मन ही मन, शट अप एंड लिसन एक्सट्रोवर्ट, तुम चुप हो जाओ, तुम पहले मेरी बात सुनो। एंड थिंक्स द इंट्रोवर्ट, ये ऐसा इंट्रोवर्ट समझता है। यहां पर एक्सट्रोवर्ट बोलता है और यहां पर इंट्रोवर्ट समझता है। ये फर्क है, क्यों समझता है? इसीलिए वो अंदर ही अंदर सब बोलता है कि तू चुप हो जा, तू पहले मेरी बात समझने की कोशिश कर, तभी तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है सेंसर वर्सेस इंट्यूटिव। सेंसर्स नोटिसेस द फैक्ट्स, डिटेल्स एंड रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। फैक्चुअल एंड डिटेल ओरिएंटेड पर्सन होते हैं ये लोग, and they are precise and practical also. They have a great concentration, they concentrate on one task at a time. They prefer the regulations, रूल्स रेगुलेशंस में फॉलो करना पसंद है उनको, डिसिप्लिन में रहना पसंद है। अगर वो किसी इनडिसिप्लिन पर्सन को देख लेते हैं तो वो
उससे बहुत ज्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देना पसंद करते हैं। आप अगर उनको एकदम से शॉर्टकट मांगोगे, दे विल नॉट टेल यू द शॉर्टकट, दे विल लव टू गिव यू द इंटायर वे टू रीच एट अ पर्टिकुलर गोल। अभी आप अगर जैसे किसी से रास्ता पूछ रहे हैं और अगर वो सेंसर है तो वो ये सोचेगा कि यार ये बंदा अगर मैं जाता तो कहीं भटक जाऊंगा, तो वो आपको पूरा रास्ता बताएगा कि यहाँ से सीधे जाओगे, सीधे जाने के बाद आपको एक सिग्नल मिलेगा, उस सिग्नल में आपको सामने एक रोड जाती हुई दिखेगी, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो आपको राइट में मुड़ना है। आप मन में ये सोचोगे कि यार ये सामने लेफ्ट क्यों बता रहा है, जब मेरे को राइट में मुड़ना है तो वो डायरेक्ट भी बोल सकता है। बट ये बंदा जो होगा, जो जितना ज्यादा सेंसर होगा उतना ज्यादा वो चीजों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेगा आपको, राइट। देन फॉलो द डायरेक्शंस। ऐसे लोग डायरेक्शन फॉलो करने पे बहुत बिलीव करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि वो गलत करेंगे तो लोग उनको फॉलो करेंगे, सिंस दे आर सेंसर्स, राइट। उनके सेंसरी ऑर्गन्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। कहीं सुन लिया कुछ हो रहा है तो एकदम से भाग खड़े होंगे कि क्या हो रहा है, चलो देखना है। ऑफिस में कुछ अगर कहीं हंगामा हो रहा है, जाके खड़े हो जाएंगे। रोड में कहीं एक्सीडेंट हो गया तो जाके रुक के उसकी हेल्प करेंगे, नहीं तो एटलीस्ट गाड़ी साइड में लगा के तब तक देखेंगे जब तक वो बंदे को साइड में ना बैठा दिया जाए। सो ऑल दीज थिंग्स आर द एग्जाम्पल्स कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। कुछ हद तक ये अच्छे भी हैं, बट जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहेंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू इग्नोर सर्टेन थिंग्स विच माइट harm you or which might trouble you sometime later. Now talking about intuitiveness. Intuitives are interested in connections between the facts as well as the possibilities of the information. They see the big picture. वो केवल फैक्ट पे फोकस नहीं करते हैं। अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है, अगर कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इंट्यूटिव पर्सन क्या बोलेगा कि यार ये अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके घर में जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, इसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई हो सकता है कि उसके घर में उसके हस्बैंड से बनती ना हो, या हो सकता है कि उसके घर में कोई और कुछ इश्यूज हो गए हो जिसकी वजह से उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो दीज इंट्यूटिव पीपल जनरली फॉर्म अ वेरी बिग पिक्चर एंड दे आर वेरी मच इनोवेटिव एंड क्रिएटिव इन देयर अप्रोच। ऐसे लोग आर्ट्स एंड साइंस में बहुत जाते हैं क्योंकि उनको क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, वो कुछ आर्टिस्टिक वे में काम करने की कोशिश करते हैं एंड दे वर्क इन बर्स्ट ऑफ एनर्जी। उनके पास एनर्जी बहुत भर भर की होती है। दे ट्रस्ट द गट फीलिंग और द हंचेस। उनके अंदर जो चल रहा है, उनकी गट फीलिंग बोलती है कि उनको लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट ही जाएंगे, इवन इफ द लेफ्ट इज द राइट रॉन्ग टर्न फॉर देम, they will follow the gut feeling most of the times, and then they believe in the theoretical explanation. कोई उनको orally बोल देगा ऐसा करो वैसा करो, they don't believe in that unless theoretically ये prove होता है कि हाँ। जैसे for example my cousin brother is having more of intuitive behavior. वो अपनी gut feeling पे बहुत बिहेव करता है। अब मैंने उसको एक दिन बोला कि रात में कर्ड मत खाया करो बिकॉज ये एसिडिटी क्रिएट करता है। वो बोला नहीं, मेरा मन कर रहा है तो मैं खाऊंगा। मैंने उसको साइंटिफिकली भी बताया कि ये अगर आप रात में लेते हैं तो इट कैन क्रिएट द एसिडिटी, और मैंने उसको गूगल करके भी दिखाया, बट देन ही वाज नॉट बिलीविंग इन मी। उसने अपनी गट फीलिंग पे बिलीव किया। उसने कहा कहीं ऐसा लिखा है थ्योरी, तो मैंने उसको फिर थ्योरी दिखाई, फिर वो समझा और तब जाके उसने कहा कि ठीक है, अच्छा किया मुझे बता दिया, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। एंड दीज आर द पीपल हु प्रीफर टू लर्न द न्यू स्किल्स बिकॉज उनको मन में हमेशा रहता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कंपटीशन में रहना है, मुझे मुझे अपने आप को साबित करना है। एंड फॉर दैट पर्पस दे प्रीफर ऑलवेज टू लर्न द न्यू स्किल्स। एलॉन मस्क के बारे में बोला जाता है कि हर महीने उसमें वो 30 घंटे कम से कम निकालते हैं एक न्यू स्किल सीखने के लिए। इस एज में भी और इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद में भी वो कोई नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं या नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। एंड दैट इज व्हाई एलॉन मस्क इज अमंग्स द रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एलॉन मस्क की स्टोरी है बिकॉज इंट्यूटिवनेस है, उनको गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है और गट फीलिंग के ऊपर उन्होंने बहुत सारे काम कर डाले हैं, राइट। रिचर्ड ब्रेंसन फ्रॉम वर्जिन, ही ऑल्सो बिलीव इन द गट फीलिंग वेरी मच। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन हैं। देन यू हैव महात्मा गांधी एज एन एग्जाम्पल एंड मार्लिन मनोर, आपको पता होगा इनके बारे में। ये दोनों पर्सनैलिटीज, लेफ्ट वाले तो डेली आपके साथ में रहते हैं, चाहे मन में हो या नोट में हो। राइट में मैरिलिन मोनरो के बारे में अगर आपको देखना है तो आपको इनका वो पोर्ट्रेट देखना चाहिए जो काफ़ी फेमस हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, और फिर बाद में कहाँ से कहाँ पे इनके पोर्ट्रेट्स बिकने लग गए। तो ये जो थे ये इंट्यूशन पे काफ़ी काम करते थे ये लोग। देन टिम बर्नर्स जो है, ही वॉज द कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। दुनिया को वर्ल्ड वाइड वेब देने वाले टिम बर्नर्स, ये जिनकी इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंट्यूटिवनेस के ऊपर काम करके इन्होंने अपनी सक्सेस हासिल की। नाउ मूविंग अहेड, लेट अस अंडरस्टैंड which way of perceiving is most automatic. Sensing is a part of brain.
जब आप सोचते हैं तो आपका ब्रेन का एक पार्ट है. इट यूजेस द 5 सेंसेस, ऑर्गेनाइजेस द स्पेसिफिक डिटेल्स, पास्ट एंड प्रेजेंट बेस्ड, सब कुछ आपके दिमाग में चलता है, उसके बेसिस पे आप सेंस करते हैं. इंट्यूशन भी एक ब्रेन का पार्ट है. इट सीक्स टू इंटरप्रेट द ओवरऑल पैटर्न, स्पेकुलेट्स ऑन द पॉसिबिलिटीज कि क्या हो सकता है, एंड मोस्टली फ्यूचर बेस्ड. ये लोग फ्यूचर में रहना पसंद करते हैं. ये आज प्रेजेंट में कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, सोचेंगे, थोड़ी देर के बाद छोड़ देंगे. वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि ये चीजें आगे भी गलत तरीके से रिपीट हों. इंडियन टीम, आपको पता है, अभी अहमदाबाद का ग्राउंड था, अहमदाबाद के ग्राउंड पे मैच हुआ, सेकेंड मैच जीत गई और थर्ड मैच हार गई. अब ये जो सेकेंड मैच जीती, कई लोगों ने ये बिलीव कर लिया होगा कि नेक्स्ट मैच भी अहमदाबाद में होगा और ये जीतेंगे. बट इंग्लैंड की टीम के कुछ प्लेयर, डेविड मलन, उनका मानना ये था, जॉस बटलर का मानना ये था कि इवन दो वी हैव लॉस्ट द गेम बट वी स्टिल हैव चांस टू कम बैक वेरी स्ट्रांगली, और वो उन्होंने करके दिखाया. तो ये लोग फ्यूचर में जो लोग रहते हैं ना, वो अपने फ्यूचर को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं. जब आप सेंस करते हैं और उसको उसके हिसाब से परसीव करेंगे पैटर्न को, और उसके हिसाब से एक्ट करेंगे, तो वो एक ज्यादा बेटर वे होगा. अगर आपने सेंस करके इमीडिएट रिएक्ट कर दिया, तो हो सकता है दैट आउटकम मस्ट बी द particular output in relation to a particular situation, and that is a possibility that because of the influence of certain things these things have happened. तो ये चीजें आपको बैलेंस करनी है. दोनों ही ब्रेन का पार्ट है, सेंसिंग एंड इंट्यूशन. बट आपको ये देखना है कि जरूरत से ज्यादा इंट्यूसिव भी नहीं रहना है कि फ्यूचर में तो मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनने वाला हूं, ज्योतिषी ने बोला है, तो अभी से मैं पढ़ाई करना बंद कर दूं. नो, यू हैव टू सेंस, you have to use all your senses, organize the details, work on it, and then only you can use the intuition. Just on the basis of intuition, no one can become successful. Being creative is good, but applying that knowledge, applying that skills through the sensory organs is also very important. Now, thinker versus feeler. Thinkers क्या होते हैं? They are task oriented and object oriented people. They are analytical. They are able to make difficult decisions. They appear unemotional and aggressive sometimes. Motivated by achievement. इनको केवल अचीवमेंट दिखता है, इनको जीतना है या इनको कुछ हासिल करना है. They argue debate very frequently. घर पे भी, बाहर भी, हर जगह पे इनका आर्ग्यूमेंट्स रहता है. एक उस बात को साबित करने के लिए लड़ जाते हैं. Then decide with their head. दिमाग से सोचते हैं, दिल को ज्यादा उपयोग में नहीं लेके आते हैं. आपने देखा यहाँ जज की फोटो, ये जज क्या कर रहा है, वो अगर अपने दिल से फैसले लेने लग जाए तो बहुत सी चीजें जो गलत हो जाती हैं वो शायद गलत ना हो, बट उसको वहां पे एविडेंस को देखते हुए फैसला लेना है. भले ही सारी चीजें जो हैं इंडिकेट कर रही हैं कि ये पर्सन जो है, जो पर्टिकुलर कन्विक्ट है, वो कन्विक्ट एक्चुअल में कन्विक्ट नहीं है, लेकिन जो बाकी जो सबूत हैं वो दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि वो कन्विक्टेड है, तो जज को वैसा ही फैसला लेना पड़ता है. वो दिल की नहीं सुन सकता. ऐसी कुछ पोजीशंस होती हैं टॉप लेवल पे जब आप दिल के भरोसे नहीं जा सकते. आपको जो परफॉर्मेंस दिख रही है उसके बेसिस पे ही काम करना पड़ेगा. कोई आपसे बहुत क्लोज है, दिन रात आपके पास रहता है, आपको पिक एंड ड्रॉप करता है, आपका खाने का सोचता है, आपकी फीलिंग्स के बारे में सोचता है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो आप कुछ हद तक उसके लिए सिंपैथी दिखा सकते हो. आफ्टरवर्ड्स यू कैन नॉट सेव दैट पर्सन, and that person will be screwed sometime later by some other person because of the non performance. So underperformance एक ऐसा रीजन होता है जो फ्रेंडशिप में बहुत आड़े हाथों आता है. जब आप कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड्स बनाते हैं और आपका कोई फ्रेंड ऐसा निकल जाता है जो परफॉर्म नहीं करता, तो उसको सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. थिंकर वर्सेस फीलर में अगर फीलर की बात की जाए, तो जहां आपने इमेज देखी, ये ऑर्फेनेज में जाके वहां लोगों से मिल रहे हैं, एंड आपने देखा ये लड़की किस तरीके से एक ओल्ड मैन से मिल रही है, ये किसी को हक कर रही है. ये इनके लिए कोई रिलेशन में नहीं है, इनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो उनकी खुशी को फील करके उनके साथ खुशियां बांट रहे हैं. राइट, दीज आर द पीपल ओरिएंटेड एंड सब्जेक्टिव पीपल. दे आर वेरी फ्रेंडली, दे हेल्प ईच अदर्स, सेंसिटिव भी होते हैं, एम्पैथेटिक भी होते हैं, डिप्लोमेटिक भी होते हैं. दे सीक द हार्मनी एंड दे ट्राई टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स. दे आर मोटिवेटेड बाय अप्रिशिएशन. इनको अप्रिशिएट करोगे तो ये बहुत आगे तक जाएंगे आपके साथ, नहीं करोगे तो इनका पूरा का पूरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है. एंड देन दे डिसाइड विद देयर हार्ट. अपने दिल की सोचते हैं, दिमाग की नहीं. राइट. सो अभी अगर बात की जाए तो इंडिया का जो सबसे टॉप का जो यूट्यूबर है उसका नाम है अजय नागर. उसका चैनल है कैरी मिनाटी. जब ये बंदा छोटा सा था तो उसके घर वाले इसको फोर्स करते थे कि तू कंप्यूटर की क्लासेस कर, एक दिन कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा बनेगा बनेगा. वो उसके दिमाग में डाल के रखा था, लेकिन वो उसके दिल में कुछ और ही था.
वो आज एक इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया है। उसके पीछे उसको काफ़ी स्ट्रगल हुआ, कई सारे लोगों ने उसको छोड़ दिया, कई लोगों ने उसको अब्यूज़ किया, कई लोगों ने उसको सार्कास्टिकली बात की, बट वो उन सब चीज़ों से पार पाते 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 आज वो उस जगह पे पहुंच गया जहां पर पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं है। बिकॉज ही यूज टू फील, वो गट फीलिंग थी उसके अंदर कि वो एक ना एक दिन बड़ा काम करेगा। हेनरी फोर्ड के बारे में भी यही है, इतने बार फेल हुए, सबसे पहली गाड़ी बनाई उन्होंने, वो फेल हो गई, उसके बाद दूसरी बनाई, फिर जॉइंट वेंचर किया, वो फेल हो गया, बाद में उन्होंने फोर्ड का टी मॉडल निकाला जो वर्ल्ड फेमस हो गया, जिसने हेनरी फोर्ड की कंपनी को रातों रात एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया। तो ये भी स्टोरी है, आप पढ़ सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है। चाणक्य के बारे में बोला जाता है कि उनकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी, और वो गट फीलिंग देखते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, जब वो एक छोटा सा लड़का था, बच्चों के साथ खेल रहा था, उसको उन्होंने वहां से पिकअप कर लिया और बोला कि एक दिन मैं इसको पूरी दुनिया का सम्राट बनाऊंगा, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो ये होती है फीलर की ताकत। नेक्स्ट, आपको पता होगा शिवाजी महाराज के बारे में, किस तरीके से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, किस तरीके से उन्होंने लोगों को एक रखा। तो ये गट फीलिंग जब आपकी बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो लोग भी आप पे बिलीव करने लग जाते हैं। बट उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें चाहिए, एक्सट्रोवर्टनेस चाहिए, सेंसिटिविटी चाहिए, ये सारी चीज़ों का राइट बैलेंस चाहिए। और इसीलिए ऐसे लोग, ऐसे लीडर वर्ल्ड में हर दिन पैदा नहीं होते, बहुत रेयरली पैदा होते हैं, ऐसा बोला जाता है। नाउ विच वे ऑफ मेकिंग द डिसीजंस इज मोर नेचुरल? If you see this particular slide, thinkers are always detached. घर में क्या फंक्शन चल रहा है वो सोचेंगे कुछ और उसके हिसाब से काम करेंगे। घर में फंक्शन चल रहा है, हो सकता है कि वो अपने दोस्त के यहाँ निकल जाएं, वो बोले तुम करो फंक्शन, मुझे तो मेरा काम है, मैं निकल रहा हूँ। राइट, they objectively analyze the problems, systematically and logically form the conclusions. If you see the feelers, हार्ट बना है यहाँ पर, subjectively analyze the problems using the personal values, यहाँ पर objectively है, यहाँ subjectively, subject to subject वो करेंगे, and then globally and emotionally form the conclusions. जो कुछ भी बनाना है अपने दिमाग में या दिमाग के बाहर, वो इमोशंस या कंक्लूजन जो भी बन रहे हैं वो उसके बेसिस पे बनेंगे, जो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया उन्होंने। नाउ कमिंग अहेड, जजर जजर वर्सेस परसीवर। जजर क्या होते हैं? दीज आर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड पीपल, पंक्चुअल, pay attention to time, plan ahead, take responsibility seriously, work first and play later. ये टेंडेंसी इनकी रहती है, काम पहले एंजॉयमेंट बाद में, एंड प्रीफर द शेड्यूल्स एंड द रूल्स। इनको शेड्यूल पे काम करना बहुत पसंद है। ऐसे लोग अगर कहीं किसी फैमिली फंक्शन में भी जाते हैं तो एक चेकलिस्ट बना के जाते हैं कि उनको साथ में क्या रखना है ट्रैवलिंग करते समय। Now, if you see judger versus perceiver, on the other hand, the perceivers are flexible, they are curious and open-minded people, less aware of the time, often get late. लेट हो जाते हैं क्यों? अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। आपने तारे जमीन पर देखा था, द गाय वॉज परसीवर, इंट्रोवर्ट भी था बट परसीवर भी था, वो अपनी दुनिया में खोया रहता था। स्कूल जाने के लिए निकलता था और बस छूट जाती थी और कहीं और घूमता रहता था, या स्कूल गया भी तो उसका मन कहीं क्लास के बाहर रहता था। सो ऑल दीज थिंग्स आर द एग्जाम्पल्स। ओपन माइंडेड होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, क्यूरियस भी होते हैं, दुनिया को देखना रहता है, इनको इनको चीजों को समझना रहता है, एंड दे लाइक फ्रीडम एंड स्पॉन्टेनिटी। इनको अगर बंदिशों में रखा जाए तो जिस तरीके से एक रेत को मुट्ठी में बंद करके पकड़ने की कोशिश करेंगे, जितना कस के रेत को दबाएंगे उतना तेजी से वो सैंड आपके हाथों से फिसलेगा। उसी तरीके से ये फ्रीडम पसंद करने वाले लोग होते हैं। इनको अगर आपने फ्रीडम अगर उनका छीन लिया तो इनका जो भी परफॉर्मेंस होगा वो एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं होगा, वो हमेशा उनका अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा। स्पॉन्टेनिटी, इनको किसी ने कुछ बोला तो तपाक से जवाब देते हैं। जैसे अकबर के साथ बीरबल, सुना जाता है कि बीरबल अकबर के हर एक सवाल का जवाब इमीडिएटली देते थे। राइट, तो हमेशा प्रेजेंटेबल रहना, एकदम से कुछ भी आता है तो स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए। देन प्रोक्रेस्टिनेट, एंड अप इन अ फ्रेंजी। लोगों को उपदेश बहुत देते हैं ये लोग, जरूरत से ज्यादा जब उपदेश देने लग जाते हैं, तू ऐसा नहीं वैसा है, तू इस तरीके का कपड़े पहन, तू इस तरीके से रह, तुझे ऐसा रहना चाहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल गेट बोर्ड ऑफ दीज पीपल, अगर ये टेंडेंसी ज्यादा होती तो। प्ले फर्स्ट एंड वर्क लेटर, उनका मानना ये इंजॉयमेंट पहले और काम बाद में। एंड देन क्वेश्चन द नीड फॉर रूल्स, वो कहते हैं रूल्स बनाए क्यों गए? आई एम मेड फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। मैं रूल को फॉलो नहीं करता, रूल्स मुझे फॉलो करते हैं, ऐसा इन लोगों का मानना होता है। राइट, now let's see what is your action orientation towards the outside world. Judges approach the outside world with a problem and with a plan, sorry.
So they organize the surroundings, they are always prepared and work towards closure and completion. इनके पास, जजर के पास में एक प्लान होता है कोई भी काम को करने का. बिल्डिंग बनानी है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे कि कब क्या क्या काम होना है, और उसके हिसाब से ये लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं. एक तरीके से जैसे वॉर लड़ने जा रहे हैं, उस तरीके से अपनी सराउंडिंग्स को बिल्कुल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं. परसीवर्स अप्रोच टू द आउटसाइड वर्ल्ड इज एज इट कम्स. जैसे आ रहा है सामने से उसी हिसाब से रिएक्ट करना है. अडॉप्टिंग एंड अडेप्टिंग टू द सराउंडिंग्स, राइट. ये कहते हैं कि जैसा सामने हो रहा है उसी हिसाब से हम ब्रेकफास्ट नहीं लेके जाएंगे, वहां कहीं रुकेंगे, देखेंगे जैसा नजारा होगा उधर जाके रुक के कर लेंगे. एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, घर से लेट हो रहा है, ब्रेकफास्ट घर में लगा हुआ है, बट वो बोलते हैं कि नहीं, वहां पर वहां के लिए पैक करके दे दो, टाइम निकाल के बीच में कर लूंगा एज इट कम्स, जहां कहीं पर पॉसिबल होगा. दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल पीपल, ऑन द गो एटीट्यूड होता है इनके अंदर. अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑफिस में गए और वहां पर सेलिब्रेशन हो रहा है, दे विल टेक इक्वल पार्टिसिपेशन इन सेलिब्रेशन, दे विल चीयर अप अदर्स, they will become like a cheerleader, they will make others happy, and they are very receptive to the new opportunities and changing plans. इनको लगता है कि हाँ प्लान चेंज हो रहा है, अच्छा है चलो करते हैं. जजर को अगर आपने बोला कि ये प्लान चेंज हो गया है, आपको कल वहां जाना है, तो इमीडिएट वो रिएक्ट करेगा, वो बोलेगा बट दिस वाज नॉट इन अवर प्लान, हाउ कम यू हैव मेड मी टू गो ओवर देयर. तो ये सारी चीजें हो सकती हैं. नाउ विच करियर मैच योर पर्सनैलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू ऑल. आपकी करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पर्सनैलिटी बहुत हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो क्या है यू विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस स्लाइड. करियर्स बेस्ड पर्सनैलिटी टाइप, ISTJ की अगर बात करें, इंट्यूटिव, सेंसर, थिंकर एंड जजर, ये मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ इन्फोर्समेंट एंड अकाउंटिंग में जा सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा ISFJ, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रिलीजियस सेटिंग. INFJ, रिलीजियस, काउंसलिंग, टीचिंग एंड आर्ट्स. INTJ, साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड्स, कंप्यूटर लॉ, ये सब इन फील्ड्स में जा सकते हैं. ISTP, क्लास में कोई है नहीं, स्किल्ड ट्रेड्स, टेक्निकल फील्ड्स, एग्रीकल्चर, लॉ इन्फोर्समेंट एंड मिलिट्री. ISFP, they can go in healthcare segment, business, law enforcement. INFP, they can go for counseling, writing or in arts. INTP, scientific or technical fields. ESTP, they can go for marketing, skilled trades, business, law enforcement and applied technology. ESFP, people are good for healthcare segment, teaching, coaching, child care worker and skilled trades. Because extrovert तो होते हैं, सेंस भी करते हैं, फील भी करते हैं, परसीव भी करते हैं. तो इस वजह से आपने देखा चाइल्ड केयर वर्कर, बच्चों को यही सब चाहिए रहता है ना, जो उनके साथ घुल मिल जाए. देन ENFP वाले लोग काउंसलिंग, टीचिंग, रिलीजियस एंड आर्ट्स. ENTP साइंस में जा सकते हैं, मैनेजमेंट में, टेक्नोलॉजी में एंड आर्ट्स में. नेक्स्ट ESTJ, शुभम, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट. ESFJ, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रिलीजन. ENFJ, religion, arts and teaching, and ENTJ, management and leadership. So ये एक स्नैपशॉट है आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपके लिए कौन सा करियर सुटेबल होगा. और मेरा मानना ये है, द ओनली रूल इज देर आर नो रूल्स. आप अपने आप को अगर डेडिकेशन है, डिटरमाइंड है, कंटेंटेड है, तो लाइफ में कोई भी इमेजिनरी टास्क भी अगर आपके हाथ में दे दिया गया तो आप उसको अचीव कर सकते हैं. ये तो जस्ट एक गाइडलाइन है, बट अगर आपको लाइफ में कहीं बड़ी पोजीशन पे जाना है तो स्काई इज द लिमिट. आपको किसी ने हाथ नहीं पकड़ा है, अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, तो आप लाइफ में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं. और आपको शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग तो याद तो होगा ही कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहने लगो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है. तो वो पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है. आप अपने आप में बिलीव करने लग जाते हो कि मैं ये करके दिखाऊंगा, और जब आप ये बिलीव कर लेते हो तो आप थॉमस अल्वा एडिसन, आइंस्टाइन, न्यूटन या उनसे भी आगे जा सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, राइट. नजर को देखोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, नजरिए को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे. कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, केवल नजर फिरा के देखो तो किनारे बदल जाएंगे. ऐसा बोला जाता है कि अगर आप
अपनी नज़र को इधर उधर फिरा के देखोगे तो अपने आप जहां पहुंचने वाले हो आपके किनारे ही चेंज हो जाएंगे, आपके एंड्स चेंज हो जाएंगे, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। आपको हर जगह पे फोकस करना है ये जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए आप हर जगह हाथ पैर मारिए। ये हाथ पैर मारने की एज है आपकी। इसके बाद आफ्टर 10 years down the line when stability will come, that time it will be difficult for you to make the changes in the career. Is that point clear to everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay.